थोड़े से पहले बता दिया होता तो अच्छा होता। So let's repeat it again. We start actually in differential equation. We will study how to solve differential equations. So we studied two methods in first class. One is the separable of variable method, and second was the reduced to separable method. And separable method, if you are able to separate the variables from each other, so you are able to solve to handle this differential equation by separable of variable method. But as it is not possible in every differential equation that you separate the variables, so you shift towards the next method, which is called the reduced to separable method. And reduced to separable method, if you are able to write the derivative in the form of y by x, in the form of function of y by x, so अगर आप हर वेरिएबल को y by x फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, so that differential equation can be reduced to separable by taking y by x is equal to u. But you know that every differential equation every variable cannot be represented in the form of y by x. So you need to study more methods. So the next method is the exact differential equations. So now we are going to develop some theory for exact differential equation. So note this point. Every differential equation can be written in the form of equation 1. मैंने जैसे पहले बताया. So every first order differential equation, it can be written in the form of equation 1. Remember this point. So if a differential equation is you know that the solution of differential equation is a function. ये आप जानते हैं ना? Solution of differential equation is a function. ये जानते हैं ना आप? Yes sir. Okay. और वो फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा, ये जानते हैं? Yes sir, वो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है सर. Yes. Okay. So मुझे आप ये बता दें कि अगर हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, dy by dx, दिस इज इक्वल टू सपोज x प्लस वाई, इसमें कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं? दो है ना, x और y. इज इट क्लियर? यस सर. इसको जब सॉल्व करेंगे, सो एज ए रिजल्ट जो फंक्शन मिलेगा, सपोज आई एम राइट द रफ वैल्यू ऑफ दिस the solution of this function, suppose x square plus 1. So ये function कितने variables पे dependent हैं? दो पे dependent है ना? x और y है ना इसमें? Yes sir. Okay. So अगर कोई differential equation उसमें दो variables हैं, तो उसके solution में भी दो variables होंगे. Is it clear? Yes sir. So equation 1 का solution, this is general first order differential equation. इसका solution इस फॉर्म में नहीं होगा, let u x y is the solution of equation 1. इसका solution अगर आएगा तो वो दो variables पे dependent होगा, एक x पे और एक y पे. So I am writing let x u x y is the solution of equation 1. is the अच्छा, बोर्ड पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं वीडियो तो नहीं चला रहा प्रीवियस क्लास का, लेकिन मैं उसकी इमेज आपको दिखा रहा हूँ. देखें, मैं उसकी इमेज आपको दिखा रहा हूँ. दिस वन ताकि मेरे लिए थोड़ा सा सिंपल बन जाए. ये देखें, हर एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं ना? Yes, ये अच्छा जी. अब u x y उसका सॉल्यूशन है, u x y उसका सॉल्यूशन है. तो अगर हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें, नोट दिस पॉइंट, अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें और इसका जो सॉल्यूशन होगा, अगर ये है
तो इसके सॉल्यूशन का डेरिवेटिव वही डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। यस सर, बिल्कुल होगा। ओके, सो नोट दिस पॉइंट। अगर हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें, उसके रिजल्ट से जो फंक्शन मिल जाए, उस फंक्शन का डेरिवेटिव वही डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन होगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके जी। सो इक्वेशन 1 क्या है? ये ऑर्डिनरी फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। u क्या है? u उसका सॉल्यूशन है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव किसकी इक्वल है? अगर वो दो वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है, कैलकुलस में आपने पढ़ा होगा ना। अगर u x और y पे डिपेंडेंट है तो du क्या होगा? सर पार्शियल वो u एक्स बाई और पार्शियल x dx प्लस पार्शियल u बाई पार्शियल y dy। लेकिन अगर u x y और z पे भी डिपेंड करे तो हमें एक और टर्म लिखना पड़ेगा, प्लस पार्शियल u बाई पार्शियल z इंटू dz। जब भी आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, नोट दिस पॉइंट, अगर आपके पास कोई फंक्शन u है और वो x और y पे डिपेंडेंट है, तो उसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा? उसका डेरिवेटिव होगा पार्शियल u बाई पार्शियल x इंटू डी एक्स प्लस पार्शियल u बाई पार्शियल y इंटू डी वाई। दिस इज इक्वल टू दिस इज, अगर ये z पे भी डिपेंड करे तो पार्शियल u बाई पार्शियल z इंटू डी जी भी होगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके जी। अब मुझे आप बता दें कि अगर u इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन है और du उसके सॉल्यूशन का डेरिवेटिव है, तो फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम नहीं है। बिल्कुल सेम है सर, क्योंकि उसका डेरिवेटिव जो है वो उसके Yes. मेन इक्वेशन की इक्वल है। यस यस। सो इट मींस कि इक्वेशन 1 एंड 2 तो फिर सेम बन गए। अगर सेम बन गए तो फिर तो हम इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। यस Yes. यस सर, बिल्कुल कर। अगर कंपेयर कर ले तो फिर इक्वेशन 2 में देखे, इक्वेशन 2 में dx का कोएफिशिएंट क्या है? पार्शियल u बाई पार्शियल x नहीं है। और बिल्कुल है सर। इक्वेशन 1 में dx का कोएफिशिएंट m है, तो फिर ये पार्शियल u बाई पार्शियल x m के इक्वल नहीं होगा। यस सर, इक्वल होगा। और dy का कोएफिशिएंट इक्वेशन 2 में पार्शियल u बाई पार्शियल y है, और dy का कोएफिशिएंट इक्वेशन 1 में n है, तो फिर पार्शियल u और y n के भी इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन एक्चुअली सेम है। तो dx का कोएफिशिएंट इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में सेम होंगे, और dy के कोएफिशिएंट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में सेम होंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके। यस सर। नोट दिस पॉइंट नाउ। अगर हम इक्वेशन इक्वेशन थ्योरी डेवलप करने जा रहे हैं, अगर हम इक्वेशन 3 को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा? विद रिस्पेक्ट टू y, इक्वेशन 3 को विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये बन जाएगा पार्शियल स्क्वायर u बाई पार्शियल y पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल m ओवर पार्शियल y। इक्वेशन 5 आ जाएगा। इज इट क्लियर? जी। इक्वेशन 3 को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करें तो इक्वेशन 5 आ जाएगा। Yes, sir. ओके। इक्वेशन 4 को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें तो इधर से आ जाएगा पार्शियल स्क्वायर u पार्शियल x पार्शियल y इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x, तो इक्वेशन 6 आ जाएगा ना। Yes, यस sir. सर, बिल्कुल। ओके। अब आपने कुछ चीजें पढ़ी होती हैं लेकिन आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, सो दिस इज द रीजन कि आपको याद भी नहीं होती। ये कैलकुलस में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूज हो तो उसके पार्शियल डेरिवेटिव दोनों सेम होते हैं। नोट दिस पॉइंट। मैं सिर्फ आपको पिक्चर दिखा रहा हूं।
कैलकुलस में आपने पढ़ा होगा। अच्छा जी, ये नोट करें, ये नोट करें, अगर आपके पास कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर आपके पास कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका डेरिवेटिव पहले आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई, या उसका डेरिवेटिव पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई ले लें फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये दोनों सेम होते हैं अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस हो। ये कैलकुलस में आपने पढ़ा होगा। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो पहले उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स पर विद, इसको हम कहते हैं पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स पर विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसको हम कहते हैं पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये दोनों सेम होते हैं, लेकिन तब सेम होते हैं अगर वो फंक्शन कंटिन्यूस हुआ। इज इट क्लियर? यस सर। ओके जी। सो मुझे आप बता दें कि ये फंक्शन u जो है, ये फंक्शन u जो है ये कंटिन्यूस है। u क्या है? u तो इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन है, और इक्वेशन 1 एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन कंटिन्यूस नहीं होगा। यस सर, होगा। अगर ये कंटिन्यूस है तो फिर तो पार्शियल स्क्वायर u पार्शियल y पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर u पार्शियल x पार्शियल y होगा। सो इक्वेशन 5 और 6 के अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो फिर तो राइट साइड इक्वल नहीं होंगे। यस सर, बिल्कुल इक्वल होंगे। अच्छा, तो फिर मैंने लिखा कि फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 पार्शियल m ओवर पार्शियल y विल बी इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x, फिर तो ये दोनों इक्वल होंगे। इज इट क्लियर? जी Yes, sir. अच्छा जी। So equation 7 is actually the criteria for exact differential equation. Equation 7 is the criteria for checking exact differential equation. मैं तो थोड़ा सा आगे बताऊंगा। अब इक्वेशन 3 को अगर आप देख ले, इक्वेशन 3 को अगर विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करें तो मुझे u नहीं मिलेगा। अगर इक्वेशन 3 को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करें तो u मिल जाएगा ना। यस सर, मिल जाएगा। या इक्वेशन 4 को विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करें तो u मिल जाएगा। यस सर। और u क्या है? u सॉल्यूशन है सर। यस, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो या तो आप इक्वेशन 3 को इंटीग्रेट करें या इक्वेशन 4 को इंटीग्रेट करें, you will get u. Is it clear? लेकिन इक्वेशन 3 को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे, नोट दिस पॉइंट, इक्वेशन 3 को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा जी? ये आपने कभी पढ़ा है कि अगर हम, नोट दिस पॉइंट, अगर पार्शियल u बाई पार्शियल x आपके पास m हो और उसको आप इंटीग्रेट करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे ना। यस सर। सो यहाँ पे लिखेंगे m इंटू डी एक्स प्लस वट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल क्या होगा? आपने कभी ये पढ़ा है कि अगर u आपके पास x प्लस वाई प्लस 2 हो, पार्शियल u और x क्या होगा? कौन बता सकता है? पार्शियल u बाई पार्शियल x 1 नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट होंगे ना। कांस्टेंट है। यस, लेकिन अगर इसी को विद रिस्पेक्ट टू x पर हम इंटीग्रेट करें तो u इज इक्वल टू s1 का x बन जाएगा, लेकिन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल क्या लिखना पड़ेगा? मुझे फंक्शन ऑफ y लिखना पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेटिव में पूरा एक फंक्शन ऑफ y जीरो हुआ था, उसको रिकवर करने के लिए हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल को फंक्शन ऑफ y लिखेंगे। इज इट क्लियर? यस सर।
जी। सो जब भी आप एक ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं जो डिपेंड करे एक्स और वाई दोनों पे, तो अगर उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल फंक्शन ऑफ वाई होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. लेकिन अगर पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई आपके पास इक्वल टू एन हो और आप विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करें तो यू क्या होगा? यू होगा एन इंटू डी वाई, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई आप कर रहे हैं। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल क्या होगा? फंक्शन ऑफ एक्स होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. जी। सो यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि u इज इक्वल टू इक्वेशन 3 एम्प्लाइज, ये इक्वेशन जो यहाँ पे टॉप पे हैं पार्शियल u और x इज इक्वल टू m, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आपको फंक्शन ऑफ y कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल मिलेगा, और u इज इक्वल टू अगर इक्वेशन 4 को इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिल जाएगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल 1। जी, दिस इज एग्जांपल 1। ये देखिए, आपको एग्जांपल 1 नजर आ रहे हैं? cos x प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस cos x प्लस वाई इंटू होल डी वाई इक्वल टू 0। ये नजर आ रहे हैं ना? Yes, sir. अच्छा जी, आप मुझे ये बता दें कि जब भी आप इक्वेशन देख ले डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पहला मेथड आपने ये देखना है कि आइदर दिस इज सॉल्युबल ऑन सेपरेबल ऑफ वेरिएबल और नॉट। तो मुझे आप ये बता दें कि इस डी एक्स के साथ जो फंक्शन जो y मौजूद है, इस y को आप किसी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं? सर कौन सा वाला सर? ये डी एक्स के साथ जो cos के साथ एंगल में y है, इस नो y सर, को जी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। यस। यस, नहीं कर सकते। सो इट मीन्स कि ये सेपरेबल ऑफ वेरिएबल से सॉल्व नहीं होगा। इज इट क्लियर? ये सेपरेबल ऑफ वेरिएबल से सॉल्व नहीं होगा। क्लियर हुआ? यस सर। इसमें आप सारे वेरिएबल्स y बाई एक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। जी, नहीं लिख सकते ना? जी, हेलो No, sir, नहीं लिख जी। सकते। सो तीसरा मेथड आपके पास क्या है? Yes, sir, नहीं लिख सकते। तीसरा ऑप्शन को आप m दे दे, dx के कोएफिशिएंट को m और dy के कोएफिशिएंट को n दे दे। इज इट क्लियर? यस सर। तीसरा Yes, मेथड sir. ये है जिसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं कि dx के कोएफिशिएंट को m दे दे और dy के कोएफिशिएंट को n दे दे। इस m को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करें तो क्या मिल जाएगा? देखिए, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस वाई साथ में होगा, लेकिन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0 होगा और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 होगा। तो जब आप 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही फंक्शन आ जाएगा, विच इज व्हाट? साइन x प्लस वाई। अब इस n को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें तो 3y स्क्वायर 0 नहीं होगा। जी, जी सर। विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 3y स्क्वायर 0 बन जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू 2y को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 0 बन जाएगा ना। लेकिन Yes, sir. cos x प्लस वाई का माइनस साइन x प्लस वाई आ जाएगा। तो अब आपने देख लिया कि पार्शियल m और y तो पार्शियल n और x की इक्वल है ना? जी। जी सर।
अच्छा जी, अगेन बात सुन ले, dx के कोएफिशिएंट जो भी हैं उसको m दे दे। और dy का, अब dx dy के कोएफिशिएंट को जिसको हमने n का नाम दिया है उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें। यह भी हमने थ्योरी में पढ़ा कि अगर ये दोनों सेम आ गए तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इज इट क्लियर? सो हमने लिखा कि a is partial m over partial y is equal to partial n over partial x, so equation 1 is exact differential equation. Is it clear? So equation 1 is exact differential equation. Is it clear? Yes, sir. So note this point, note this point कि अगर आपके पास चले मैं थोड़ा सा चले उसको नेक्स्ट कर लेंगे। ये देखिए, ये आपके पास cos x plus e into dx plus 3y square जी 3y square plus 2y plus cos x plus y into dy, this is equal to 0. This is equation number 1. आप पहले ये देखें कि ये सेपरेबल ऑफ वेरिएबल से हो जाएगा या नहीं होगा। तो सेपरेबल ऑफ वेरिएबल में ये है कि इस dx से इस y को तो आप ख़त्म नहीं कर सकते, इसी तरह इस dy से इस x को ख़त्म नहीं कर सकते, तो ये सेपरेबल से नहीं होगा। इस y को या इस x को या इस y स्क्वायर को या जितने भी x और y मौजूद हैं, इसको अगर आप y बाई एक्स फॉर्म में नहीं लिख सकते तो ये इस रिड्यूस टू सेपरेबल भी नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन आपके पास ये है कि dx के कोएफिशिएंट को आप m की वैल्यू m की इक्वल ले लें, dx के कोएफिशिएंट को आप m दे दें विच इज cos x प्लस y, और dy के कोएफिशिएंट को आप n दे दें विच इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस cos of x प्लस y प्लस cos of x प्लस y। सो पार्शल m को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करें, m को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करें, ये हर क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे, माइनस साइन x प्लस y आ जाएगा, और n को विद रिस्पेक्ट टू x करें, n को विद रिस्पेक्ट टू x करें, सो n को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आएगा, 3y स्क्वायर 0 बन जाएगा, 2y 0 बन जाएगा, cos x का माइनस साइन x प्लस y आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वल है ना? जी Yes, sir. बिल्कुल जी सो सर। हम लिख सकते हैं कि हम इसको सिंपली अगर आप ए से लिखना चाहते हैं तो ए से लिख ले, एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स, एम वाई मीन्स पार्शल एम ओवर पार्शल वाई और एन एक्स मीन्स पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स। सो अगर ये दोनों इक्वल हैं, एज दिस इज इक्वल, सो फिर इक्वेशन 1 क्या बना? इक्वेशन 1 एग्जैक्ट नहीं बना, बन गया ना? जी सर। Equation 1 is exact differential equation. Exact differential equation. अगर ये exact differential equation है तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर हमने ये थ्योरी में पढ़ा था कि इसके सॉल्यूशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x m होगा और इसके सॉल्यूशन का डेरिवेटिव
इसके सॉल्यूशन का डेरिवेटिव, u मीन सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y n होगा। ये याद है आपको? जी सर। जी ओके, सर। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। ये इक्वेशन 2 और 3 तब होंगे जब ये एग्जैक्ट होगा। अगर ये एग्जैक्ट नहीं होगा तो फिर ये इक्वेशन 2 एंड 3 भी नहीं होंगे। ये हमने थ्योरी में पढ़ा कि अगर कोई इक्वेशन एग्जैक्ट है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो फिर उसके सॉल्यूशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एम होगा और उसके सॉल्यूशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एन होगा। इज इट क्लियर? यस सो आप ऐसे करें कि आप इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट करें, तो 2 से अगर आप सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो कैसे होगा? दिस विल बी इक्वल टू u इज इक्वल टू व्हाट? ये m इंटू डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ कौन सा लेके, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। अगर इक्वेशन 2 से आप निकालना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं इक्वेशन 2 से। यस सर। ओके जी, तो अब मैं वीडियो वाला पिक्चर दिखा रहा हूँ। वीडियो वाला पिक्चर मैं दिखा देता हूँ, ये देखें। ये देखिए, इक्वेशन 2 को जब इंटीग्रेट किया तो मुझे मिला u इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। अब m की वैल्यू क्या है, याद है आपको? m की वैल्यू क्या है? cos x प्लस वाई नहीं थी? यस सर, cos x प्लस वो वाई। नोट करें। अच्छा, इस cos x प्लस वाई को जब इंटीग्रेट करेंगे तो sin x प्लस वाई आ जाएगा। सो दिस विल बिकम sin x प्लस वाई और ये f ऑफ y साथ में अपनी जगह पे होगा। सो u इज इक्वल टू sin x प्लस वाई प्लस एफ ऑफ वाई। अब नोट करें, इस f ऑफ y को फाइंड करने के लिए आपने इन इक्वेशन 2 और 3 में कौन सा इक्वेशन यूज किया, ये मुझे बता दें। u फाइंड करने के लिए आप इक्वेशन 2 और 3 में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। इक्वेशन 2 को यूज करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे और इक्वेशन 3 को यूज करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. आपने इक्वेशन 2 और 3 में से किस इक्वेशन को यूज किया जहां से आपने u फाइंड किया, ये मुझे बता दें। इक्वेशन 2 2 को किया। 2 को, यस। अच्छा जी, जब आप इक्वेशन 2 को यूज करें u फाइंड करने के लिए तो u जब आ जाए तो उस u को विद रिस्पेक्ट टू y आप डिफरेंशिएट करें। उस u को, क्योंकि इक्वेशन 3 अभी तक यूज नहीं हुआ, तो उस इक्वेशन 3 को यूज करने के लिए मैं जब इक्वेशन 2 से u फाइंड कर लूं तो उस u को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करें। लेकिन अगर आप u इक्वेशन 3 से निकालते हैं तो फिर इक्वेशन 2 को यूज करने के लिए उस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें। इज इट क्लियर? यस सर। सो मैंने u इक्वेशन 2 से फाइंड किया, मैंने इक्वेशन 2 से u फाइंड किया। अब मैंने उसी u को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया। सो साइन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा? cos x प्लस वाई। और f ऑफ y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा? f डैश y नहीं होगा? हो जाएगा सर। ओके जी, लेकिन पार्शियल u और y किसके इक्वल हैं? वो तो n के इक्वल नहीं है। n के इक्वल है सर। और n किसके इक्वल था? n किसके इक्वल था? मुझे बता दे, n की वैल्यू क्या थी? n की वैल्यू 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस cos x प्लस y नहीं थी? बिल्कुल सर, यही वैल्यू थी। सो मैंने पार्शियल u और y की जगह n पुट किया और n की जगह वैल्यू पुट की। सो अब आप देखिए, लेफ्ट साइड पे पार्शियल u और y की वैल्यू है, राइट साइड पे वही दो वैल्यूज अपनी जगह पे। सो ये cos x प्लस y और cos x प्लस y कैंसिल नहीं हो जाएगा? यस सर, कैंसिल हो जाएगा सर। तो f डैश y क्या बना? f डैश y बना 3y स्क्वायर प्लस 2y। लेकिन मुझे f डैश y से अगर f ऑफ y फाइंड करना पड़े तो f डैश y को इंटीग्रेट करेंगे ना। f डैश y का इंटीग्रल क्या होगा? f ऑफ y नहीं होगा? f ऑफ y होगा सर।
और एफ डैश वाई को इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट साइड को भी करेंगे ना। सो 3y स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, y क्यूब नहीं होगा। वाई क्यूब हो जाएगा सर। ये देखिए 3y स्क्वायर का इंटीग्रल y क्यूब बन जाएगा, 2y का इंटीग्रल y स्क्वायर बन जाएगा और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। इस वैल्यू f ऑफ y को आप इस u वाले वैल्यू में पुट करें। u क्या था, u sin x प्लस वाई प्लस f ऑफ y था, लेकिन f ऑफ y की वैल्यू मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैंने इस u को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया ताकि इस f ऑफ y की वैल्यू फाइंड कर सके। अब इस f ऑफ y की वैल्यू आ गई तो मैं इस u में उसको पुट कर लेता हूँ। सो u में पुट करने के बाद आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। देखिए u इज इक्वल टू व्हाट, sin x प्लस वाई प्लस f ऑफ y की वैल्यू पुट करें y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस c, सो यू विल गेट दिस वैल्यू। इज इट क्लियर? यस। लेकिन अब इस u की आपको महसूस होता है कि इसकी जरूरत है। u तो हमने इंट्रोड्यूस किया था जब सॉल्यूशन नहीं था, अब तो उस सॉल्यूशन की वैल्यू हमें मिल गई ना। u को खत्म करें, u को खत्म करें, u को खत्म करेंगे तो ये c जब उस साइड पे जाएगा तो माइनस c बनेगा, उसको c1 दे दे। सो यू विल गेट द सॉल्यूशन एज व्हाट, सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, sin x प्लस वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर। ये c जब उधर जाएगा तो माइनस c बनेगा, u 0 बन जाएगा, u की जरूरत अब नहीं रही, सो इट विल बिकम c1। ये आपका सॉल्यूशन बना जी। कोई क्वेश्चन है? नो सर। अच्छा जी, दोबारा सुन लें, चले नेक्स्ट एग्जांपल में ये और क्लियर हो जाएगा। मुझे आप ये बता दें, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 में गिवन है, ये सेपरेबल से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये फंक्शन है cos y sin हाइपरबोलिक x प्लस 1 dx माइनस sin y cos हाइपरबोलिक x dy इक्वल टू 0। सेपरेबल से कर सकते हैं? यस सर, सेपरेशन से कर। नहीं, dx के साथ ये cos y इन्वॉल्व है, इस cos y के साथ आप कैसे इसको सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, उधर प्लस 1 भी है ना। यस सर। ओके, और हर y और x को आप y बाई एक्स में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। सो आपके पास थर्ड ऑप्शन क्या है, आप ऐसे करें कि dx के कोएफिशिएंट को आप क्या दे दे, m दे दे, और dy के कोएफिशिएंट को आप n दे दे। m क्या हुआ, इन क्या बना, cos y sin हाइपरबोलिक x प्लस 1 बना ना। n क्या बनेगा, माइनस sin y sin cos हाइपरबोलिक x। इज इट क्लियर? यस सर। जी। अच्छा, एम वाई क्या बनेगा, पार्शियल एम और पार्शियल वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो क्या बनेगा, cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y होगा जी। sin हाइपरबोलिक x अपनी जगह पे होगा, प्लस 1 का 0 बन जाएगा, cos y का माइनस sin y बन जाएगा। सो m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y बन जाएगा माइनस sin y sin हाइपरबोलिक x। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। ओके जी। पार्शियल n और पार्शियल x क्या बनेगा, ये देखिए, इसको आगे हम nx से डिनोट करेंगे, ठीक है। पार्शियल m और y को my से डिनोट करेंगे। n और x क्या होगा, cos हाइपरबोलिक x sin y तो कांस्टेंट होगा, वो अपनी जगह पे लेके, लेकिन cos का डेरिवेटिव sin होगा। इज इट क्लियर? सो my इक्वल टू nx है, दोनों इक्वल हैं जी। जी हेलो। यस सर। अच्छा जी, सो इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट। अगर एग्जैक्ट है तो फिर इसके सॉल्यूशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x m होगा,
और उसके सॉल्यूशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एन होगा। ये होगा अगर ये एग्जैक्ट है। जी अगर ये एग्जैक्ट है तो इसके सॉल्यूशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एम होगा एंड उसके सॉल्यूशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एन होगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके जी। सो इक्वेशन 2 से अगर हम u निकाल ले तो क्या होगा? m dx प्लस एफ ऑफ वाई नहीं होगा। m की वैल्यू पुट करेंगे। m की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? m की वैल्यू है cos y sin हाइपरबोलिक x प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। इसका इंटीग्रल क्या बन जाएगा? इसका इंटीग्रल ये नहीं होगा। ये देखिए u क्या बन जाएगा? cos y तो कांस्टेंट होगा बिकॉज यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। cos y अपनी जगह पे होगा, लेकिन sin हाइपरबोलिक का इंटीग्रल cos हाइपरबोलिक होगा और 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? x नहीं होगा। यस सर, एक्स होगा। और एफ ऑफ वाई अपनी जगह पे होगा। इस एफ ऑफ वाई को फाइंड करने के लिए आप इस u को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करें। इज इट क्लियर? यस सर। ओके जी। सो पार्शियल u और y मिल जाएगा। cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y cos हाइपरबोलिक अपनी जगह पे, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0 बन जाएगा और f ऑफ y का f डैश ऑफ y बन जाएगा। अब पार्शियल u और y किसके इक्वल हैं? बता दें मुझे। जी n के इक्वल है। n के इक्वल है और n किसके इक्वल है? माइनस साइन बाई कॉस एच एक्स। यस। सो पार्शियल u और y की जगह ये वैल्यू पुट करें। सो पार्शियल u और y की जगह ये वैल्यू पुट करें। सो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। सो एफ डैश ऑफ y क्या बना? एफ डैश ऑफ y 0 बन जाएगा। एफ डैश ऑफ y अगर 0 है तो एफ ऑफ y c बन जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और 0 का इंटीग्रल कांस्टेंट होगा। सो इस एफ ऑफ y इज इक्वल टू c को इस u वाले इक्वेशन में पुट करें। सो u क्या बन जाएगा? u बन जाएगा cos y cos हाइपरबोलिक x प्लस x प्लस c। सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन लिखने के लिए इस u को 0 कंसिडर करें और इस c को दूसरे साइड पे शिफ्ट करें तो माइनस c बन जाएगा और उसको c1 दे दे तो cos y cos हाइपरबोलिक x प्लस x इक्वल टू c1। इज इट क्लियर? यस सर। ओके। ये एग्जाम्पल 3 है। एग्जाम्पल 3 नोट करें। इसको सेपरेबल से आप कर सकते हैं। यस सर, ये तो हो सकता है क्योंकि सर कोई कांस्टेंट नहीं है। यस यस। सो लेकिन चूंकि ये इस एक्सरसाइज में गिवन है तो हम एग्जैक्ट के तरीके से ट्राई करते हैं, लेकिन ये सेपरेबल से आराम से हो सकता है। पेपर में जब आ जाए फिर आप किसी मेथड से भी उसको कर सकते हैं। अच्छा जी, अब देखें मैं m क्या ले लूं? m को माइनस वाई दे दूं, n क्या बन जाएगा? x। m को विद रिस्पेक्ट टू y जब करूंगा तो -1 आएगा और n को विद रिस्पेक्ट टू x जब करूंगा तो 1 आएगा। इज इट क्लियर? यस सर। m y और n x इक्वल है या नहीं है? यस सर, इक्वल है। नहीं है। नहीं है सर, नहीं है, सॉरी नहीं है। सो इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट। अब क्या करें? अब क्या करें जी? इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट। इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट। सो हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन 1 के साथ जो कि नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है, इसके साथ एक फंक्शन मल्टीप्लाई करते हैं 1 ओवर एक्स स्क्वायर। क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 1 के साथ? फिलहाल आप ये न पूछें कि ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर हम कहाँ से लेके आ रहे हैं और हम इसको कैसे फाइंड करेंगे।
At this stage, we are not able to tell about this, why we are selecting this specific function. आगे थोड़े से 10 मिनट बाद मैं इसको निकाल भी दूंगा, इस फंक्शन को आप ऐसे निकालेंगे। तो फिलहाल आप ये इस क्वेश्चन न पूछे। मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ 1 और वाई एक्स स्क्वायर, मैं उसको इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इक्वेशन 1 ये मुझे देगा, ये इक्वेशन 2 बन जाएगा। इस फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के बाद ये इक्वेशन 2 बन जाएगा। मुझे आप बता दें थोड़ा सा, इक्वेशन 1 के साथ अगर 1 और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन 2 बन रहा है। अच्छा जी, अब इक्वेशन 2 को देखें, मैं dx के कोएफिशिएंट को m1 का नाम दे रहा हूँ। m1 इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि m और n ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं। तो मैंने dx के कोएफिशिएंट लिया -y/x² और dy का कोएफिशिएंट लिया 1 और x स्क्वायर। एक को मैंने m1 का नाम दिया, एक को n1 का नाम दिया। अब आप देखिए m1 को विद रिस्पेक्ट टू y जब करेंगे तो -1 और x स्क्वायर आएगा। ओके, n1 को विद रिस्पेक्ट टू x जब करेंगे तो -1 और x स्क्वायर आएगा। 1 और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x -1 और x स्क्वायर होता है ना। जी, वन ओवर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? -1 और एक्स स्क्वायर नहीं होगा। जी, तो आप देखिए m1y और n1x इक्वल नहीं है। सो कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन 2 को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं। जी, इक्वेशन 1 एग्जैक्ट नहीं था, लेकिन इस फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के बाद वो इक्वेशन एग्जैक्ट बन गया। इज इट क्लियर? इस फंक्शन को, जिस फंक्शन को हमने मल्टीप्लाई किया, इसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। नोट दिस पॉइंट। वो फंक्शन जो किसी नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन के साथ अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें और वो नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन उस फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के बाद एग्जैक्ट बन जाए, तो उस फंक्शन को जिसने नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाया उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? अगर आपसे कोई पूछ ले, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक फंक्शन है, अगर उसको हम किसी नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करें और उसके मल्टीप्लिकेशन के बाद वो एग्जैक्ट बन जाए तो उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। हर फंक्शन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं कहते, क्योंकि हर फंक्शन किसी नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन को एग्जैक्ट नहीं बनाएगा। वो फंक्शन जो उसको एग्जैक्ट बनाए उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। बट सर ये आएगा कैसे सर? जी, वो नेक्स्ट स्टेप में मैं बता दूंगा। अच्छा जी, अब इक्वेशन 2 एग्जैक्ट है, तो इक्वेशन 2 जो है अगर वो एग्जैक्ट है तो फिर इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन कैसे होगा? इक्वेशन 2 के सॉल्यूशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x m1 नहीं होगा। यस सर, होगा। और इक्वेशन 2 के सॉल्यूशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y n1 नहीं होगा। अब मैं m और n नहीं लिख रहा क्योंकि वो m और n वाले इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं था, m1 और n1 वाले इक्वेशन एग्जैक्ट है। इज इट क्लियर? यस सर। सो मैं इसको एक को इक्वेशन 2 दे रहा हूँ, एक को इक्वेशन 3 दे रहा हूँ। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो u इज इक्वल टू m1 dx + f ऑफ y नहीं आएगा। आएगा सर। अच्छा जी, मुझे m1 दिखा दे। m1 की वैल्यू क्या है? -y/x² है ना। इसको विद रिस्पेक्ट टू x अगर इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा? -y/x² को y/x आएगा। y/x। ओके जी, अब इसी u को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा? y/x का डेरिवेटिव 1/x नहीं होगा। होगा सर। f डैश ऑफ y अपनी जगह पे। सो पार्शियल u और y किसके इक्वल हैं? वो तो n1 के इक्वल हैं।
और n1 किसके इक्वल है? वो तो 1 ओवर x के इक्वल है। तो पार्शियल u और y की जगह 1 ओवर x पुट करे तो 1 ओवर x और 1 ओवर x कैंसिल हो जाएगा और f डैश ऑफ y क्या बन जाएगा? 0। तो f ऑफ y क्या बना? c नहीं बना। सो यहाँ पे पुट करें इसको। सो u क्या बन जाएगा? सो u बन जाएगा आपका u इज इक्वल टू y ओवर x प्लस सी। सो इस c को, इस जीरो u को खत्म करें तो ये y ओवर x इज इक्वल टू c1 बन जाएगा और y इज इक्वल टू c1x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नोट दिस पॉइंट। अब मैं थोड़ा सा बोर्ड भी यूज कर लेता हूं। अच्छा जी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, नोट दिस पॉइंट। Integrating factor. What is integrating factor? G. What is integrating factor? Exact function or non-exact function or exact function. G. Integrating factor is a function if we multiply it with non-exact equation and it make it exact, so that function is called integrating factor. So इसकी थ्योरी मैं रेगुलर क्लासेस में डिराइव करता हूँ, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली फार्मूले लिख लेता हूँ फर्स्ट एंड सेकंड। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए, उस फंक्शन को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला आप ये यूज करें, एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन इंटू डी एक्स, और एक यूज करें इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए ये वाला फार्मूला, ई पावर एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई एम इंटू डी वाई। इसको याद करने का तरीका ये है, चलिए मुझे आप थोड़ा सा ये बता दें कि एग्जैक्ट चेक करने के लिए आप एम वाई और एन एक्स को तो फाइंड करेंगे ना, ये दोनों तो फाइंड करेंगे। एग्जैक्ट चेक करने के लिए ये दोनों फाइंड करेंगे ना? ओके जी। सो आप ऐसे करें कि एम वाई से एन एक्स सब्ट्रैक्ट करें। जब एन एक्स सब्ट्रैक्ट में होगा तो नीचे एन लेके, और अगर एन एक्स सब्ट्रैक्ट में है तो डी एक्स लिख ले। और पहले एम वाई से एन एक्स सब्ट्रैक्ट करे, अब एन एक्स से एम वाई सब्ट्रैक्ट करे, तो नेक्स्ट फार्मूला बन जाएगा एन एक्स माइनस एम वाई। अगर माइनस में एम वाई है तो डिवाइड में एम लिख ले, और अगर माइनस में एम वाई है तो डी वाई लिख ले, और इन दोनों को ई के पावर में इंटीग्रेट करे, ई के पावर में इसको इंटीग्रेट करे, सो यू विल गेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इज इट क्लियर? सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है, लेकिन नोट दिस पॉइंट, ये आपको फंक्शन ऑफ एक्स देगा। अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन है तो फंक्शन ऑफ एक्स देना चाहिए इसको, और ये फार्मूला आपको फंक्शन ऑफ वाई देना चाहिए इस फार्मूले के मुताबिक, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रल है। अगर ये कैलकुलेशन के दौरान अगर ये फार्मूला आपको फंक्शन ऑफ, सपोज अगर इस फार्मूले से आप कैलकुलेशन कर रहे हैं और आपको मिल जाए 1 ओवर एक्स स्क्वायर वाई, ये फंक्शन मिल जाए, तो फिर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से जो फार्मूला फंक्शन मिलेगा वो सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स आना चाहिए। अगर फंक्शन ऑफ एक्स आ जाए तो वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। और इस फार्मूले को यूज करने के दौरान अगर फंक्शन ऑफ वाई ओनली आ जाए तो वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। लेकिन इस फार्मूले से अगर आपको फंक्शन ऑफ एक्स आ जाए इस वाले से, तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं होगा, और अगर इस फार्मूले से फंक्शन ऑफ वाई आ जाए तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं होगा। इज इट क्लियर? जी।
मतलब मेरा मतलब ये है कि इस फार्मूले से फंक्शन ऑफ एक्स आना चाहिए और ये इस फार्मूले से फंक्शन ऑफ वाई आना चाहिए। इज इट क्लियर? Yes, जी, sir. ओके। सो लेट्स सी एन एग्जांपल। मैंने यहाँ पे ये लिखा कि ये दो फार्मूले हैं, एक से Yes, sir. जी एक से फंक्शन ऑफ एक्स आना चाहिए, दूसरे से फंक्शन ऑफ वाई आना चाहिए। सो लेट टेक एन एग्जांपल। ये एग्जांपल हमने अभी किया था ना, माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, लेकिन हमने वो फंक्शन डायरेक्ट लिया था। अब हम कैलकुलेट करते हैं उस फंक्शन को। देखिए एम क्या होगा माइनस वाई, एन क्या होगा एन एक्स, एम वाई क्या बना माइनस वन, एन एक्स क्या बना वन। सो इक्वेशन वन इज नॉट एग्जैक्ट। सो लेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसकी इक्वल है? ई पावर एम वाई माइनस एन एक्स। अगर माइनस में एन एक्स है तो नीचे एन होगा और डी एक्स होगा। इज इट क्लियर? जी, एम वाई की वैल्यू क्या है? एम वाई की माइनस वन नहीं है। एन एक्स की वैल्यू क्या है? वन। एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू एक्स है। 1. सो ये ई पावर माइनस टू बाई एक्स बना। इसको मैं ई पावर माइनस टू लॉग ऑफ एक्स लिख सकता हूं। जी, लिख सकते हैं ना? जी हेलो, अगर समझ नहीं आ रहा तो बता दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन लेकिन देखिए, अगर जी, सर। माइनस टू को कॉमन करे तो ये वन ओवर एक्स बन जाएगा, और वन ओवर एक्स का इंटीग्रल लॉग ऑफ एक्स होता है ना। सो ई पावर माइनस टू लॉग ऑफ एक्स। ये आपको पता है कि माइनस टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई लॉग ऑफ एक्स माइनस टू। और ये आपको पता है कि ई और लॉग एक दूसरे को कैंसिल भी करता है। सो ई और लॉग जब कैंसिल हो जाए तो इस इधर से x माइनस टू आ जाएगा, और x माइनस टू को वन ओवर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना वन ओवर एक्स स्क्वायर। लेकिन ये अगर वन ओवर वाई स्क्वायर आता तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर ना होता, क्योंकि हम जिस फार्मूले को यूज कर रहे हैं उधर से फंक्शन ऑफ एक्स आना चाहिए। ये जी कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा जी, यही फंक्शन हमने मल्टीप्लाई किया था ना उस टाइम जी, पे। सर. अभी अगर Yes, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन वन के साथ तो इक्वेशन वन एग्जैक्ट बन जाएगा। ये हमने निकाल लिया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल 5 देखिए जी, ई पावर एक्स प्लस वाई ई पावर वाई डी एक्स प्लस एक्स ई पावर वाई माइनस वन डी वाई इक्वल टू जीरो। दिस इज इक्वेशन वन। आप मुझे ये बता दें कि ये सेपरेबल ऑफ वेरिएबल से हो सकता है? जी, ये सेपरेबल ऑफ वेरिएबल से हो सकता है? No, नहीं हो sir. सकता, क्योंकि डी एक्स से आप वाई खत्म नहीं कर सकते। सो लेट ट्राई एंड गिव दी m इज इक्वल टू व्हाट? m क्या बना? m dx का कोएफिशिएंट है वो e पावर x प्लस वाई बन जाएगा, प्लस y e पावर y, और n क्या बन जाएगा? x e पावर y माइनस वन। इज इट क्लियर? अब आप m को विद रिस्पेक्ट टू y करें तो e x प्लस वाई का डेरिवेटिव जब करेंगे तो वो तो e x प्लस वाई आएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वही होता है ना। अच्छा जी, y और e पावर y का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें। y छोड़ दे, e पावर y का करे तो e पावर y आ जाएगा, प्लस y का वन बन जाएगा, और e पावर y अपनी जगह पे आ जाएगा। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y। अब n को विद रिस्पेक्ट टू x करें, n को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या बन जाएगा? x का वन आ जाएगा और e पावर y अपने उसी तरह आ जाएगा, माइनस वन का जीरो बन जाएगा।
सो एम वाई इक्वल है एन एक्स के? जी No, sir. नहीं है। तो क्या करेंगे, हम एक ऐसा फंक्शन ढूंढेंगे जिसको हम मल्टीप्लाई करें और वही इक्वेशन वन वो एग्जैक्ट बना दे। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए मैं ये फार्मूला यूज कर रहा हूँ, ई पावर एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई एम इंटू डी वाई। सो इसमें जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा सो मुझे मिल जाएगा ई पावर वाई ई पावर एम एन एक्स की वैल्यू क्या है, एन एक्स की वैल्यू ये है, देखिए ई वाई वो मैंने पुट की, एम वाई की वैल्यू पुट की, ई वाई और ई वाई कैंसिल हो जाएगा, ई वाई और ई वाई कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखें ये जो ऊपर और नीचे वैल्यूज हैं ये दोनों सेम नहीं है, सिर्फ माइनस का फर्क है। सेम है जी। सो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं ना। सो ई पावर माइनस वन आ जाएगा, ई पावर माइनस वन, ई पावर माइनस वन का विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रल क्या होगा, ई पावर माइनस वाई होगा ना। और इधर से कौन सा फंक्शन आना चाहिए था, हम कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं देख ले थोड़ा सा। फंक्शन ऑफ वाई वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं ना। यस सर। F of y आना चाहिए। जी, तो ई पावर वाई आ गया विच इज ए फंक्शन ऑफ वाई। सो इस ई पावर माइनस वाई को इक्वेशन वन के साथ मल्टीप्लाई करें। सो मैंने मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाई व्हाट, बाई ई पावर माइनस वाई वी ऑफ 10। या आप मुझे बता दे कि मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा इक्वेशन टू। थोड़ा सा देख ले, अगर इस इक्वेशन वन के साथ ई पावर माइनस वाई मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन टू बन रहा है। जी सर। ओके जी। सो इसमें m1 क्या होगा, m1 इज ई एक्स प्लस वाई, और n1 क्या होगा, n1 होगा x माइनस ई पावर माइनस वाई। अब आप इस m1 को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, m1 को विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये x कांस्टेंट होगा, y का 1 बन जाएगा। n1 को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो x का 1 बन जाएगा और e पावर माइनस y का 0 बन जाएगा। सो m1y इक्वल टू n1x है। सो कौन सा इक्वेशन एग्जैक्ट बना, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन, इक्वेशन 2 के सॉल्यूशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, m1 नहीं होगा, और इक्वेशन 2 के सॉल्यूशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y n1 होगा। बाकी तो वही प्रोसीजर है। तो u बन जाएगा m1 dx प्लस f ऑफ y एंड m1 का इंटीग्रल, और m1 क्या होगा, m1 की वैल्यू क्या है, व्हाट इज m1, देखिए ex प्लस वाई, ex का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, ex नहीं होगा, और y का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, xy नहीं होगा। जी देखिए m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू ये है ना ex प्लस वाई। सो ex का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या है, इंटीग्रल क्या होगा, ex होगा ना, लेकिन y का विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रल xy होगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके जी। इस u को अब विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करें, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ex तो 0 बन जाएगा, xy का विद रिस्पेक्ट टू y x आ जाएगा, और f ऑफ y का f डैश y आ जाएगा। लेकिन पार्शियल u और y तो किसके इक्वल है, वो तो n1 के इक्वल है, और n1 तो n1 किसके इक्वल है, n1 इसके इक्वल, यस। सो x कैंसिल हो जाएगा और f डैश y आ जाएगा माइनस e पावर माइनस y। उसको इंटीग्रेट करें, you will get f ऑफ y, f डैश ऑफ y ये बन जाएगा, f डैश ऑफ y क्या बना, दिस इज माइनस e पावर माइनस y। सो इस उससे f ऑफ y e पावर माइनस y प्लस c आ जाएगा, और इस f ऑफ y को यहाँ पे पुट करें, you will get u। सो u आपको मिल जाएगा
u मिल जाएगा e पावर x प्लस एक्स वाई प्लस e पावर माइनस वाई प्लस c। सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन बन जाएगा ये आपका सॉल्यूशन बन गया। इस c को उधर सर्च शिफ्ट करें, माइनस c बन जाएगा, उसको c1 दे दे। दिस इज योर सॉल्यूशन। सो ये एक्सरसाइज 1.4 जो है एक्सरसाइज 1.4 नोट करें। एक्सरसाइज 1.4 इसके एग्जाम्पल 1 ये हमने कर लिया, एग्जाम्पल 2 हमने कर लिया, एग्जाम्पल 3 हमने कर लिया, एग्जाम्पल 4 हमने कर लिया और एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल 4 एंड एग्जाम्पल 5। ये 5 एग्जाम्पल्स हमने कर लिए। एक्सरसाइज नोट करें 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 to question number 15। this is your homework। question number 1 to question number 15, this is your homework। एग्जाम्पल्स हमने कर लिए एग्जाम्पल 1 to 5 बिफोर एक्सरसाइज 1.4 और क्वेश्चन नंबर 1 to 15 ऑफ एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 to 15। जी कोई क्वेश्चन आपको समझ आ रहा था या नहीं? मुझे थोड़ा सा बता दें आप लोग। यस सर, समझ आ रहा था सर। अच्छा जी। Yes, sir, समझ आ रही है, sir। ओके जी, ओके।